Hello everyone and welcome to Sambhav Law. In today's session, we have with us Sadaf, who has cleared the Jamia Millia Islamia LM entrance exam of 2026. And today she is here to tell us her strategy as to how she prepared for the examination. And also, if a future aspirant wants to clear this exam, how can they approach the same? Accordingly, Sadaf, I would firstly welcome you to the channel. And also, I would like you that you please अपने आप को introduce please करें. Thank you so much, sir, for taking time for interviewing me, first of all. I am Sadaf. I come from Telangana, and I completed my graduation from BBAU, that is Baba Saheb Bhimrao Ambedkar University, Central University Lucknow, in 2025. And after that, I went to court for 4 months and learned the basics, how court runs and everything. And then after that, I started my preparation around the January ending or February start, like that. And I started giving examinations from CUET, and I given CUET, and I've given South Asian University exam, and I've given PGP-ISM interview of NISM, and I completed my JM exam last April. I see, I see. So if I talk about Sadaf ki like जैसे what was your aim like start जब आपने किया था like what was your aim, why did you want to pursue LLM in that whole sense? It's not in my thoughts. So LLM is like I have to do because I need the tag on my name like BBL, LLM, and also like want to have a bigger step in corporate law. So LLM could be useful when it comes to specializations. I see. So, like, if I come to my first question, Sadaf, like, if I talk about the Jamia Millia Islamia examination itself, we know that there are multiple steps to this examination because there is a objective part, then there is a subjective part, then there is, a current affairs and also. So, like, how firstly do you approach the whole thing? Like, आपने preparation, like, when you started, कैसे आपने किया? How did you manage everything? Preparation के बारे में थोड़ा बताइए, please. So my basics were fine, like not that great, not that high, but my basics were like normal. And from February actually सर मेरा peer pressure बहुत बढ़ गया था क्योंकि CUET देना था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में जाना ही था. तो ऐसा है कि CUET का भी ऐसा सिलेबस है कि 35 बेरैक्स पढ़ना है आपको. Sections you have to be perfect, case laws you have to be perfect. So from February I started studying every day for 10 to 12 hours. 10 to 12 hours क्योंकि सडनली अचानक से बढ़ जाता है जब प्रेशर कि यार कंप्लीट करना है एक दिन में एक एक एटलीस्ट कंप्लीट करना है और समथिंग यू हैव टू बी परफेक्ट विद एटलीस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशन jurisprudence all the criminal laws environmental law international law these are very important for any exam to see any examination these are the common subjects you have to be perfect at so उसको परफेक्ट करने में मैं 10-12 घंटे पढ़ती थी I used to sleep around 4 to 5 hours which I will not recommend by the way my parents were concerned कि what's happening with her and everything एंड CUET का मेरा 30 लेवल पे हो गया था एंड नेक्स्ट एग्जाम मेरा अप्रैल 14 मैंने PGP-ISM का इंटरव्यू दिया था और साउथ एशियन यूनिवर्सिटी का मैंने अप्रैल 26 दिया था और JMI का अप्रैल 29 शायद एग्जाम सो मैं कभी रुकी नहीं लाइक आई डिडंट टेक अ ब्रेक इन बिटवीन अरे एग्जाम हो गया तो चलो आई आई वाज लाइक कंटिन्यूइंग एवरी डे आई यूज्ड टू कीप लाइक ये मेरा इतना एमसीक्यूज कंप्लीट करना है इतना एनालिसिस करना है आपका मॉक्स तो है ही सर इतना एनालिसिस करना है इतना मॉक्स करना है और कभी कभी ऐसा है कि मैं इतना टाइम नहीं है तो मैं पहले ही जो मॉक है मैं सबमिट कर देती हूँ और जो आंसर्स होती थी नॉर्मली क्वेश्चन आंसर्स में पढ़ती थी so that really helped me. Like a lot of people will say like mock though and you analyze for 2-3 hours. I say submit the mock. If you don't have time, come see the questions, write your notes, revise it every day of the exam before and go for the exam. आई सी आई सी ये तो ये एक बहुत ही अच्छा अप्रोच है बिकॉज देखिए पहली बात तो ये होती है एक बहुत ही बड़ी चीज़ इससे हम लोग को समझ में ये आती है कि दैट यू नीड टू प्रिपेयर नॉट जस्ट फॉर वन एग्जाम मल्टीपल एग्जाम्स आप ट्राई करिए जैसे आपने केस में भी आपने सीवीटी दिया फिर पीजीपीएसएम का दिया फिर आपने साउथ एशियन का दिया फिर आपने जामिया का दिया तो उससे क्या होता है ना कि अगर आपका एक में नहीं हो रहा तो कम से कम दूसरे में तो तीसरे में और कभी कभी ऐसा भी होता है कि मल्टीपल जगह आपका हो जाता है बिकॉज देखा अगर जाए तो टाटा इंस्टीट्यूट भी एक अच्छा कॉलेज है आपका एनआईएसएम में भी आपका पीजीपीएसएम में इज अ वेरी वेरी गुड वन वो आपको हो रखा है आपका जामिया भी देखिए यहाँ पे कितने बढ़िया था तो तीनों चीजें आपका एक तरीके से क्लियर है तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग फिर आपके पास ऑप्शन होता है कि आप किस चीज में कहाँ पे स्विच करना चाहते हो कैसे करना चाहते हो तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आता है तो चलिए हम लोग जामिया की तरफ थोड़ा सा आते हैं जामिया के प्रिपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा बात करते हैं देखिए जामिया के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सीरियस प्रिपरेशन कब स्टार्ट करी और जैसे सीवीटी की आपकी जो प्रिपरेशन थी उसका क्या रोल था और जैसे जो आपके पार्ट्स होते हैं जिसमें आपका सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उनको आपने कैसे प्रिपेयर करा उसका क्या मेथड था
ना एक्चुअली जो आप सब्जेक्टिव आंसर्स की पहले वो बात करें, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है व्हेन इट कम्स टू जेएमआई, बिकॉज इट होल्ड्स अराउंड 50 मार्क्स। एमसीक्यूज तो छोड़ो, हर एग्जाम पे तो यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर द इंपॉर्टेंट सेक्शंस, केस लॉस, यू विल बी प्रिपेयर्ड फॉर सब्जेक्टिव आंसर्स। नो वन विल टीच यू। Like for this, I'll thank my dad because jab bhi from 10th class, he used to always scold me every day. Read newspaper, read editorials. You have to know what's going on. You cannot be dumb. You have to. So उसकी वजह से मैंने थोड़ा न्यूज़पेपर पढ़ना। और मेरे पापा लाइक वो एप्स होते हैं, लाइक एंड ही यूज्ड टू सेंड मी द लिंक्स, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं एंड एवरीथिंग। सो उसकी वजह से मैं हर दिन एडिटोरियल्स पढ़ती थी, एटलीस्ट मेरे टैबलेट में कभी कभी देख लेती थी क्या हो रहा है जुडिशरी में, इन चीजों में। So when it comes to JMI subjective answers, it's not just academic, first of all. It's not like what are the fundamental rights, what are the fundamental duties. They're not going to give those type of questions for you. They're going to like test your awareness around legal subjects. They asked about AI, they asked about voting rights, they've asked about Hindu Succession Act in relation to STs. So you cannot know like what kind of questions they will give you. ये subject में इतना आएगा, there is nothing like that. You have to know, like मैंने तो सर पहले आई वाज सो स्ट्रेस की यार सब्जेक्टिव आंसर नहीं होगा, एमसीक्यूज तो चलो हो जाएगा। बट ऐसा है ना कि मैंने एग्जाम्स प्रिपेयर कर रही हूँ और केस लॉस याद रखती हूँ, जो भी लैंडमार्क जजमेंट्स है, दिस विल रियली हेल्प। लाइक यू कैन रिलेट एनीथिंग विद आर्टिकल 14, 19, 21, गोल्डन ट्रायंगल। यू कैन लिंक विद एनीथिंग। सो मेरे को केस लॉस और आर्टिकल सेक्शंस मेरे को बहुत यूज हुआ है। अभी भी मैं पीजीपीआईएसएम एनआईएसएम क्लास में बैठ जाती हूँ, कभी भी कंपनी लॉ का कुछ क्वेश्चंस आते हैं या कॉन्ट्रैक्ट्स का कुछ आता है, एग्रीमेंट्स के बारे में कुछ आता है। सो आई यूज्ड टू से लाइक दिस सेक्शन, दिस द केस लॉ। सो इट्स ऑलवेज हेल्प्स यू। सो दैट व्हाट रियली हेल्प मी इन सब्जेक्टिव आंसर्स, एडिटोरियल्स एट द सेम टाइम रीडिंग एवरीडे केस लॉ स्टफ। आई सी, आई सी। तो मतलब उसमें मेरी मेन बात ये हो जाती है ना कि जैसे जो आपका सब्जेक्टिव आंसर वाला पार्ट है, उसमें अगर आप मान लो जैसे क्लैट पीजी की तैयारी शुरू कर रहे हो फॉर इंस्टेंस, तो वहां पे आपको ऑटोमेटिकली लैंडमार्क रीसेंट केस लॉस पढ़ने हैं। कुछ लोगों का तो मुझे लगता है वहीं से अपना हो जाएगा। आपके केस में आपने जो कि स्टार्टिंग से ही आपके फादर ने अपना एक हैबिट डलवाई कि हाँ हमको न्यूज़पेपर्स पढ़ने हैं, हमको आर्टिकल्स पढ़ने हैं, हमको हमेशा अवेयर रहना है कि व्हाट इज गोइंग इनसाइड द वर्ल्ड। बिकॉज एक होता है, एक माइंडसेट होता है कि हमको बस रहना है, वी नेवर नो कि वी इन्फॉर्मेशन हमें कब काम आएगी। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अच्छा, इसमें भी जैसे अगर हम लोग बात करते हैं तो मुझे लगता है जहां तक आपका रैंक है, इट इज एआईआर 1 इन दैट पर्टिकुलर मेरिट लिस्ट के हिसाब से। और कॉर्पोरेट लॉ में मेरा वन है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉ में। आपका स्पेशलाइजेशन आपको टिक करना होता है कि आपको किस में जाना है। तो मैं कॉर्पोरेट लॉ का ही किया था, क्योंकि मेरे को कॉर्पोरेट लॉ में लीगल एडवाइजिंग ऐसे जाना है। अच्छा अच्छा, तो उसमें आपका 1 आया था, तो फिर उसके हिसाब से मतलब हम लोग बात करें कि जैसे सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। बिकॉज यस। देखिए हर जगह का जो सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग का स्टाइल होता है, अगर आप कॉलेज में लिख रहे हो तो अलग तरीका होगा, अगर आप पीसीएस जे पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो जे के हिसाब से, या फिर मान लो एपीओ के हिसाब से बात कर रहे हो, यूपीएससी के, हर किसी का स्ट्रक्चर अलग है। तो आपने जामिया में क्या स्ट्रक्चर फॉलो किया था? तो पहली चीज, मैं सीबीएसई से हूँ। मेरा 10th मैंने लिखना होता है, एंड देन 7 to 10th आई ऑल्सो स्टडी इन अ डिसेंट स्कूल। सो केवी का मेरे को बहुत यूज हुआ, क्योंकि उनका आंसर राइटिंग 10th क्लास का बहुत अच्छे से सिखाते हैं। इंट्रोडक्शन होना चाहिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होना चाहिए, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, आपका अवेयरनेस क्या है उस चीज में, उसके बाद कंक्लूजन। सो इसमें 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ईच क्वेश्चन हैज 5 मार्क्स। सो पहले ही मैं जब सीनियर्स को से जब बात करती थी, they'll be like आंसर एवरी क्वेश्चन एंड एवरीथिंग। सो जो भी नॉलेज है, यू हैव टू लिंक। इफ यू डोंट नो अबाउट एआई, लिंक विद एनीथिंग, अबाउट विद कॉन्स्टिट्यूशन, एनीथिंग, रीसेंट जजमेंट से या आर्टिकल से, सेक्शन से, इनकी एनीवे। सो ऐसा मैंने किया है सर। अच्छी बात है कि उनका एक पेज का था इस टाइम, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस लिखना था। तो आपका सेक्शंस और लैंडमार्क जजमेंट्स अच्छा नॉलेज है तो सर आप कर सकते हो। ऐसी इंट्रोडक्शन कंक्लूजन से हो ही जाएगा, 3 3 लाइन बीच में if you done it। ऐसी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि आपको लॉन्ग आंसर की जगह शॉर्ट आंसर्स की प्रैक्टिस होनी चाहिए। टेक्निकली स्पीकिंग, शॉर्ट आंसर राइटिंग इन दिस पर्टिकुलर केस। तो अगर आपको 10 आंसर्स लिखने हैं, तो इट इज लाइक अ रैपिड फायर थिंग कि भाई आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, उस लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम में आपको एमसीक्यू भी सॉल्व करना है, आपको फिर सब्जेक्टिव का भी देखना है। तो आप जैसे मान लो एआई की बात हम लोग करते हैं, तो एआई में जैसे आपने अगर लिखना शुरू करा, तो इट इज इंपॉर्टेंट कि आप एआई को अगर आप बात करते हो तो
राइट टू प्राइवेसी एआई की वजह से एक बहुत बड़ा ब्रीच होता है, बिकॉज आपका इन्फॉर्मेशन और डेटा सब कुछ आपका शेयर हो रहा है, तो फिर उसकी वजह से आपके क्या राइट्स है प्राइवेसी के You पॉइंट get ऑफ व्यू linked से? with वो case, पोट्टास्वामी Puttaswamy case. पोट्टास्वामी केस और आर्टिकल 21 का आ जाएगा, फिर उसमें Yes. अगर आप पीछे से मतलब, तो Yeah. आपको बस पोट्टास्वामी का वो रखना है, पोट्टास्वामी का क्या एक रेशियो था वो रखना है, और किस जज ने अगर मान लो थोड़ा बहुत क्या लिखा है, तो वो एक बहुत प्यारा आंसर आपको बना के देगा। तो इन इट सेल्फ द और आंसर मैंने तो इस चीज में हाँ। लिंक किया है सर, इस चीज में लिंक किया कि मैं चैट जीपीटी से भी लिंक किया है कि चैट बच्चों चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं, क्लॉड यूज कर रहे हैं। आपका पॉइंट ऑफ व्यू रखना है सर, दिस इज द पॉइंट ऑफ जेएमआई। जेएमआई इज जस्ट नॉट एकेडमिक्स अभी। और मैं ये भी नहीं बोल सकती कि शॉर्ट आंसर से प्रिपेयर करना है, क्योंकि इस बार पेपर चेंज हुआ है, नेक्स्ट हम्म। ईयर भी बदल सकते हैं। दे आर हाँ। एक्सपेरिमेंटिंग एवरी ईयर। सो लेट, हम बोल नहीं सकते प्रिपेयर फॉर लॉन्ग आंसर, प्रिपेयर फॉर शॉर्ट आंसर, प्रिपेयर फॉर मीडियम आंसर, एवरी आंसर, बी अवेयर। एंड लॉ स्टूडेंट्स है हम्म। तो हम लिख ही लेंगे, तो अलग बात है, हमारे 5 साल का यही चलता है हर भाई सेमेस्टर में। 5 साल में तो कॉपी भरते हो, सिंपल सी बात है, तो फिर तो आइडिया होता ही है कि भाई व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू, वो तो रहता ही रहता है, वो तो बात है। उसके बाद देखिए अगली चीज एक आती है कि जामिया का जो अगला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, वो है उसका थोड़ा सा जीके वाला और करंट अफेयर्स और बाकी सब चीजों का। उसके लिए क्या प्रिपरेशन रखा, या फिर केवल मतलब जो न्यूज़पेपर्स वगैरह पढ़ते थे उसकी वजह से आपको एक हेल्प रहा, कैसे रहा उसका? नहीं सर, इसके लिए तो मैं यूट्यूब वीडियोस देखती थी मंथली, क्योंकि मैं प्रीवियस पेपर्स एक बार आई थिंक अराउंड 8 to 9 पेपर्स लिया था मैंने। 9 पेपर्स मैंने प्रॉपर एक फाइल बनाया है प्रिंट लेके, फिर मैंने वर्ड पे बैठा, मैंने हर सब्जेक्ट का क्या क्या किस टॉप का क्वेश्चन आ रहा है, स्टिल नाउ आई हैव दिस पीडीएफ राइट नाउ। सो मेरे को, हमको कॉमन पॉइंट्स दिख जाते हैं कि यार पर्सनल लॉस में ज्यादा आ रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन में आ रहा है, प्रिंसिपल्स में ज्यादा आ रहा है और समथिंग लाइक दैट। तो मैंने करंट अफेयर्स का भी ऐसा ही किया था, स्पोर्ट्स न्यूज में आ रहा है, स्कीम्स में आ रहा है, किस टाइप का चीज में आ रहा है। सो मैंने हार्डली 4 to 5 डेज ही दिया था, क्योंकि ऐसा ही स्ट्रक्चर आ रहा है, मोस्टली ऐसा ही आया था, स्पोर्ट्स के बारे में आ रहा था, जेएम मैकेनिज्म ऑपरेटिंग फ्रेमवर्क में कौन सा रैंक पे था, 4th प्लेस में था। सो बेसिक क्वेश्चंस, मतलब उसके इतना ध्यान भी ना दो कोई बात नहीं, बट दूसरी चीज में कर सकते हो आप। मतलब बेसिक बेसिक नॉलेज तो भाई देखो करंट अफेयर्स की होनी ही चाहिए, सिंपल सी बेसिक। बात है। ये स्पोर्ट्स यस। किसने जीता, किसका कहाँ पे, मान लो ओलंपिक्स में किसने मेडल पाया, कौन सा इवेंट यहाँ पे हुआ, किसने इसको। हाँ हाँ, स्पोर्ट्स। अब ऐसे अभी फीफा भी चल रहा है, फीफा वर्ल्ड कप का भी हो देखो, अगला बस में आएगा। इस टाइप का चीजें तो आपको आना चाहिए, वो सब चीजें हैं। यस। तो उसके बाद देखो अगला क्वेश्चन आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट वीडियो का ये होने वाला है, लोग इसी को स्किप करके देखेंगे। देखना इंटरव्यू कैसा रहा। सर मैं तो सोचा कि इंटरव्यू हो ही जाएगा मेरा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि मेरा अच्छा ग्रिप एंड एवरीथिंग। सो 3 दिन था, हार्डली आई थिंक 200 पीपल वर कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू फ्रॉम द एग्जाम। सो 3 days they divided 70 70 70 like that. So mine was the second day, and I heard the before day how was the experience of these people. I have my friends in Delhi. They are like, oh my God, they are testing your knowledge in every way and everything. I was little tensed. देन मेरा एक एक आ रहा था, एंड दे आर लाइक यार बहुत हार्ड हो रहा है। मैं लाइक क्या ही है, हो जाएगा हमारा। देन आई एंटर्ड इनटू द रूम एंड आई सीन 3 to 4 faculty. They asked me questions which I cannot even imagine. Like, I will say one question, like we discussed before, sir, that how could you relate Bentham utilitarian theory with the criminal law? Like, you can't even imagine this type of questions. Like, either they ask questions like with the high bar or the low. Like, they ask me second question, what is constitutionalism? Basically, what we say, following the morals or principles of constitutionalism. It's not that. Constitution is basically limiting the power of the government, not misusing the power. So they are testing your out of the box knowledge. आई सी। What tough. You have to like know the all. मतलब इट्स लाइक कि देखो ऐसा नहीं है कि जो आपका इन्फॉर्मेशन, मतलब आप ये समझ के चलो कि अगर मैंने केवल कॉन्स्टिट्यूशन के इंपॉर्टेंट सेक्शन तैयार कर लिए, एक डोमेन सब्जेक्ट तैयार कर लिया, उस डोमेन से ही पूछेंगे। इट्स लाइक दैट कि मतलब डोमेन Mhm. पूछते हैं, नहीं पूछते? डोमेन पूछते हैं, पूछते हैं पहले पूछते हैं कि व्हाट इज योर थिंग, बट फॉर मी दे डिडंट आस्क मी क्वेश्चंस what domain I needed. Like, you told me about nuisance, relate with constitution, relate with environment. मैंने ये आंसर दिया कि सर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पे कर सकते हैं, इनके रिलेशन एनवायरमेंटल न्यूसेंस बोल सकते हैं हम। सो देयर लॉट ऑफ केस लॉस हम बोलेंगे, देन दैट डिग डीपर लाइक व्हिच एमसी मेहता केस यू आर टॉकिंग अबाउट। सो यू हैव टू बी थॉरो अबाउट व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। हम कुछ भी एक शब्द भी बोले, दे विल take that one word and link with the question, and they'll say like, just now you told me this word, link with this. So you have to be very aware about what you're talking or what you're saying.
नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ ऐसा होता है ना कि जैसे इंटरव्यू के अंदर में पहला क्वेश्चन तो मेरा ये होगा कि व्हाट इज द पेस ऑफ द इंटरव्यू, मतलब लाइक इंटरव्यू में कितने लोग थे और उसमें क्या क्या सब, मतलब किस सब्जेक्ट एक्सपर्ट से कैसे लोग बैठे थे। उसके बाद ये होता है कि जैसे आपका एक्सपीरियंस जैसा रहा कि कितना लंबा इंटरव्यू चला, बाकी लोगों का कैसा इंटरव्यू कितना लंबा चला। और इज इट मतलब कि जो क्वेश्चंस पूछते हैं वो लोग डोमेन जब पूछते हैं डोमेन के अंदर में ही पूछते हैं, और प्लस आपका जो बैकग्राउंड होता है उसके बारे में कितना पूछते हैं, व्हाट इज द होल स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरव्यू, अगर आप स्टेप बाय स्टेप जाओ तो। तो मेरा इंटरव्यू तो पेस बहुत फास्ट चला था, बिकॉज देवर पैनल का 3 to 4 डिपेंड होता है। क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स थे उनका 4 हुआ था और मेरा 3 लोगों का पैनल था। और बहुत लाइक व्हेन यू speaking a sentence, they will just take a word and they will link with any question. So you have to understand how faculty is. बहुत तगड़ा फैकल्टी है उनका नॉलेज, लाइक हैट्स ऑफ, लाइक बहुत डीप है उनका नॉलेज। और दूसरों का सर इंटरव्यू में बोलूंगी तो टफ ही है उनका। तो नो वन इज हैप्पी व्हेन दे कमिंग आउट ऑफ द इंटरव्यू रूम। दे आर लाइक व्हाट हैज हैपेंड, आई वाज जस्ट मैं स्टक हो गई थी, मैं क्या बोल रही थी, आई वाज नॉट इवन अंडरस्टैंडिंग एंड एवरीथिंग। बट बहुत टफ था सर, इंटरव्यू तो बहुत टफ थी, बिकॉज आई कैन नॉट इवन imagine connecting with Bentham with criminal law or something like that. आई सी, आई सी। और जैसे मान लीजिए अगर बात करते हो तो कितना कितना लंबा इंटरव्यू रहा होगा आपका, एक लाइक जनरल सर सेंस में। मेरा तो 10 मिनट्स था, बहुत लोगों का 20 मिनट्स था, बहुत लोगों का 5 मिनट्स था। सो जब बच्चे वहां जाते हैं उनको पता चल जाता है कि हाउ दे आर। अगर ओके हम तो और बोलते जा रहे हो, इफ यू आर फ्लेक्सिंग लाइक ओ आई नो दिस दे विल टेस्ट यू मोर। ओके कम ऑन, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन। सो जितना बात करना उतना बात करना। फ्रॉम माय साइड आई गिव एन एडवाइस। आई सी। अच्छा, इसमें भी फिर अब अगला क्वेश्चन ये आता है मेरा कि जैसे इंटरव्यू के अंदर में आप अपना जो इंट्रोडक्शन पार्ट देते हो, जैसे मान लीजिए किसी इंसान का मान लो कोई गैप है तो गैप ईयर का पूछते हैं, या फिर मतलब क्या प्राइवेट प्रीवियस एक्सपीरियंस है, या क्या आपको मतलब उन सब क्वेश्चंस के बारे में क्या रहता है। सर मेरे को तो पूछा है कि आप पास आउट कब हुए हो, मैंने बोला 2025। देन आस्क्ड व्हिच यूनिवर्सिटी आर यू फ्रॉम, एंड दे वांट टू चेक आवर मार्क लिस्ट, how did we score and everything. And they asked about DBAU faculty, like who are there, how are right now. And I thought that okay, pace was going slow. And then questions were started. Like they asked me corporate law, and I'm like, yes, corporate law. But they asked me questions from constitution. They asked me questions from torts or constitution. So they can ask anything. You have to be ready. मतलब ऐसा इट्स नॉट इम्पोर्टेंट, जैसे लाइक इफ यू टॉक अबाउट अदर इंटरव्यूज जो कि आई लाई के होते हैं, या फिर आप बात करते हो तो एन आई एस एम की भी अगर हम लोग बात करें तो फॉर अ सर्टेन एक्सटेंट तो वहाँ पे दे बेसिकली फोकस मोर अपॉन अ पर्टिकुलर डोमेन, तुम डोमेन बता दो उसके अंदर सवाल वगैरह पूछेंगे, और 5 से लेके 6 मिनट का इंटरव्यू फिर खत्म कर देंगे ऐसे करके। कुछ कुछ लोगों का 3 3 मिनट का भी होता है। लेकिन जामिया में वट आई एम एबल टू सी इसकी लंबा इंटरव्यू रहता है, और अगर आपको उन लोगों को दिखता है, सेंस आता है कि यू आर समवन जिसको की नॉलेज है, तो वो लंबा भी खींच सकते हैं। और अगर आपको लगेगा कि उनको नॉलेज आपको कम है, तो वो आपका फिर वो अपने आप समझ जाएंगे, उस हिसाब से आपसे कम क्वेश्चन पूछ के आपको फिर चलते कर देगा, फिर इंटरव्यू में आपका नंबर फिर उस हिसाब से हाँ। कम ही आना है। सीधी सी बात है, मतलब वो डिपेंड इस पे करता है कि आप बस। कितनी नॉलेज वहां पे शो कर पा रहे हो। और एक एक शब्द को ऐसा समझ के चलो कि इंटरव्यू नहीं हो रहा है, एक मूड कोर्ट हो रही है सॉर्ट ऑफ। बिकॉज अगर आप किसी Exactly. मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट करते हो तो वहां पे जैसे आप किसी जज के सामने आप बोलते हो अलग अलग तरीके, मान लो कहीं भी कुछ भी कर रहे हो, आपको अलग अलग तरीके के अप्रोच मिलेगा। कुछ होंगे जो भी तुम साइलेंटली बैठे रहेंगे, बस सुनते रहेंगे, अच्छा ठीक है चलिए बता दो। कुछ होंगे जो मतलब बीच में आके इंटरफियर करेंगे, अच्छा तुमने ये बोला इसका ये मतलब बताओ, अच्छा ये बता इसका ये मतलब है, तो फिर यहाँ से इसको कनेक्ट करके यहाँ से Yeah. बता दो इसका भी क्या मतलब है उसका। तो आपको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि आप एक लाइव डिबेट में जा रहे हो। इट्स नॉट जस्ट अ इंटरव्यू, इट्स अ लाइव डिबेट। और उस डिबेट में जब तक आप अपने पॉइंट को क्लियर अक्रॉस द बोर्ड रख नहीं पा रहे हो, नॉलेज अपनी समझ नहीं पा रहे हो, एक एक शब्द को इस्तेमाल करने का वजन जो होता है कि अगर आपने एक पर्टिकुलर वर्ड बोल लिया, एक केस बोला, तो उसको बैक करने की पावर रखो। ये फिर अगर बोलोगे कि सर आई विल रीड अपॉन इट या फिर आई विल डू दैट, फिर वो चीज़ उतनी अच्छे से आपके फेवर में वर्क नहीं करेगी मेरे हिसाब से। टेल मी लाइक मैं अगर मैं कहीं पे गलत हूँ तो इसमें। नहीं सर, एग्जैक्टली आप जो बहुत सही बोले हो। एग्जैक्टली मेरे को ये पता होता तो मेरा और अच्छी होता इंटरव्यू, बट आई एम ग्लैड दैट अच्छा हुआ, मेरा सिलेक्शन हुआ है। हम्म। बट या यू आई हैव सी, टू बी आई सी। अवेयर ऑफ एवरीथिंग। नहीं वो तो बात सही, अवेयर तो आपको होने की जरूरत है, नहीं तो फिर उसमें मजा नहीं आएगी, फिर सिंपल सी बात है ना। तो इसके बाद यस। अगले क्वेश्चन पर अगर सर अपन लोग आते हैं, थोड़ा सा ये है कि जैसे आप जामिया में हैं कि आपका प्रिपरेशन का, अगर मान लो कोई स्टूडेंट अब अगले ईयर में प्रिपेयर कर रहा है, तो आपके पास क्या एडवाइस होगी कि उसको कैसे शुरू करना चाहिए, एंड व्हाट शुड बी द रिसोर्सेज दैट यू शुड यूज, या कैसे आपको सब चीज़ें करनी है। मैं किसी एग्जाम की भी अभी जो मैंने दिया है, 4 to 5 एग्जाम्स मैंने दिया था।
All I've regretted when I'm preparing for the exam is I should have started before. मेरे को इतना प्रेशर नहीं लेना चाहिए था। अच्छा मार्क्स है हर चीज में, क्रैक साउथ एशियन हो गया, टीस हो गया, या मेरा एनआईएसएम का पीजीपीआईएसएम हो गया, जेम, आई एम वेरी ग्लैड, बट द थिंग इज व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग आई थिंक यू हैव टू प्रिपेयर विद little peace in your mind. You have to have your confidence. You should not have your low self-esteem. So start preparing at least 6 to 7 months. I'm not saying you to sit like 8 or 10 hours. Sit 2 hours, 1 hour, see a YouTube video. Just start. And I made like a pact with myself कि every day I have to complete this much and everything. And that was horrible time for me because 12, 10 to 12 hours आप continuously पढ़ रहे हो, and वो टेंशन होता है कि मॉक भी देना है, एनालिसिस भी करना है, और नोट्स भी हमको रिवाइज करना है। बिकॉज हम प्रिपेयर करते जाते हैं, बट अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हो वो 1 हफ्ते का या 10 दिन का, फिर टाइम वेस्ट ही है। मेरे लिए तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है सर। सो इतना वो है बात कि तो आप पहले थोड़ा बहुत 6 मंथ और 5 मंथ अच्छे से दे दीजिए मॉक्स प्रिपेयर कर, आपका नहीं हो तो फिर सबमिट करके पढ़ लीजिए आंसर्स कि क्या क्या पॉइंट्स एंड एवरीथिंग, केस लॉ सेक्शंस, ये याद रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई सी। अच्छा सर, ऑफ कमिंग टू माय लास्ट क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कई सारे एग्जाम्स दिए, जैसे क्लैट भी दिया, सीवीटी भी दिया, जामिया भी दिया, एनआईएल दिया, तो उनका नहीं हुआ, तो अब होता है सर भाई डिमोटिवेशन आता है, क्या करे सर, कैसे करे सर, अब कैसे होगा, जिंदगी खत्म तो नहीं हो गई हमारी सर, तो उनके लिए आपके पास क्या राय होगी, व्हाट वुड यू से टू देम? आई वॉज वन ऑफ देम, बिकॉज मैं रिजल्ट के पहले ही आई टू फिक्स लाइक अरे नहीं आएगा यार, सब पढ़ाकू लोग हैं, सब पढ़ते हैं, मेरा क्या है। बट ब्लेस दैट आई हैड ग्रेट पेरेंट्स, दे ऑलवेज ट्रस्ट इन मी। दे आर लाइक तुम्हारा हो जाएगा, डोंट वरी, आई सीन योर हार्ड वर्क। मैं ये बोलना चाहती हूँ उन लोगों की, आप रुको नहीं, एक एग्जाम में नहीं हुआ मत रुको, स्टार्ट स्टडी, दैट्स ओके। अगर एक बार नहीं हुआ दूसरा हो जाएगा, कोई नहीं। ऑल यू हैव टू ट्रस्ट इज हार्ड हम्म, वर्क एंड रिविजन, दैट्स ऑल आई कैन exactly. से। वो बात तो बिल्कुल सही, हार्ड एंड वर्क। मॉक्स, एंड आपका मॉक्स, मॉक्स आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑनेस्टली। आपका मॉक्स ऐसा ऐसा कि बेसिक से क्वेश्चंस होते हैं, हाई पार क्वेश्चंस होते हैं, सो एक बैलेंस होता है एक मॉक में। ऐसा मॉक नहीं देख सकते कि पूरा पूरा टफ होगा आपका या पूरा पूरा इजी होगा। ऐसा है कि जो बच्चे अभी स्टार्ट किए हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो आता है। जिसको सब आता है, ये भी होता है कि यार अच्छे से रिवीजन हो रहा है। सो आई थिंक योर मॉक्स हेल्प मी अ लॉट। सो आई सी, आई आई हैव सी, टेकन अ टू पैक्स आई थिंक। आई सी, आई सी, आई सी, आई सी, आई सी। और यस। उसके अलावा सिर्फ एक चीज़ और भी मैं ऐड करूंगा इसमें, एक तो का हार्ड वर्क, एक हो गया किस्मत, और फिर एक होती कंसिस्टेंसी, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब मतलब आपने भी बहुत अच्छे से यस। एक चीज़ को एलेबरेट किया था कि देखो कोई भी तैयारी कर रहे हो, तैयारी में ना आप टाइम पीरियड अपना एक्स्टैब्लिश कर लो कि हाँ भाई चलो 6 महीने, 7 महीने या 10 महीने जो भी आपको लेना है आप अपना एग्जाम का लो। लेकिन इस चीज़ को ध्यान में रखो कि आप पहली बात तो कहाँ पे अभी हो, जैसे मान लो आपके केस में आप एक पढ़ाई कर रहे हो कॉलेज में, और आपका मान लो इंटर्नशिप चल रहा है, या आपको मान लो कहीं जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस हिसाब से देखो कि भैया मैं अगर रोज का 4 घंटे का पढ़ाई को दे सकता हूँ, तो मैं 4 घंटे के हिसाब से अपना पहले ही शुरू कर लूँ। अगर मैं 2 घंटे दे सकता तो और पहले शुरू कर लूँ। अगर मैं 7 8 घंटा दे तो मैं देर से भी थोड़ा शुरू करूंगी, तो काम हो जाएगा। और फिर उस पेस को कंटिन्यू रखो एज द टाइम गोज ऑन, जिससे कि आपको आखिरी में जाके एक बहुत अच्छा एक रिजल्ट मिले उस चीज का। मेरे को ये लगता है कि कंसिस्टेंसी, रोज पढ़ाई करना, रोज इस चीज को वो करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। यस सर। यही है, तो वही है। एग्जैक्ट। एग्जैक्टली, तो वही है, तो अकॉर्डिंगली सदफ, अब आई होप कि ये जो हमने सेशन आज लिया उससे काफ़ी स्टूडेंट्स को हेल्प मिलेगी जामिया के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कैसे उनको प्रिपरेशन करना है, क्या करना है। एंड आई थैंक यू सो मच कि आपने मतलब टाइम निकाला, एंड आपने ये पूरा आप लोग को बताया कैसे कैसे चीज़ें। थैंक यू सो मच फॉर द सेम, थैंक यू सो मच।